مجھے پتا ہے آصف ڈار صاحب کشور نحیم صاحبہ کے لیے 6 بجے سے آئی ہیں. اچھا جی, لائٹ چیز کو لائٹ ہی لینا چاہیے. ابھی میں ویلکم کرتا ہوں, ایک تو ہمارے نعیم الحق صاحب بیٹھے ہیں یہاں پہ, ان کا بڑا دیدار ہوتا رہتا ہے اکثر ٹی وی پہ. ایک ہمارے اسلام آباد سے آئے ہوئے اور ساتھی ہیں حافظ عثمان عباسی صاحب, ذرا ان دونوں کو ذرا ویلکم کرتے ہیں. ہم جیسے پاکستانی کرتے ہیں on behalf of آج ڈاکٹر صاحب اینڈ میتھیو, کین آئی ریکویسٹ 2 منٹ کے لیے. آج چونکہ ہم سب اردو بولنے والے ہیں, ایک یہاں پہ کفایل عالموں کہیں بیٹھا ہوگا جو تھرڈ ورلڈ سالیڈرٹی سے ہے, اور ایک میتھیو ہے جو تھرڈ ورلڈ سالیڈرٹی سے. یہ دونوں ہماری گفتگو آج نہیں سمجھیں گے. مائی اپالوجیز فرام بوتھ آف دیم, بٹ دے ول ریکارڈ اٹ اینڈ آئی ول ٹرانسلیٹ اٹ ٹو دیم لیٹر آن. ہی ول ریکارڈ سم تھنگ ایز ویل. اور خالد محمود صاحب, تو آپ کو پتا ہے کہ ہم خالد محمود صاحب کے لیے جو بحری پار سے تیسرا الیکشن جیتے ہیں, ان کو بھی چوتھا الیکشن. اور خالد محمود صاحب ہر دفعہ الیکشن جیتنے کے ساتھ ساتھ اپنی میجارٹی بھی بڑھاتے گئے, اور ابھی میرا خیال انہوں نے 50% کے قریب ٹوٹل کنسٹیچوئنسی میں ووٹ لیے. اس کے باوجود ہے over 50%. So I think we are very proud of you Khalid Mahmood صاحب, اور ہم سب پاکستانی. آج جب ہم نیچے بیٹھے تھے, آصف ڈار صاحب چائے پی رہے تھے, 5:30 بجے میں آیا تو چائے پینے لگ گیا, اور میں نے وہاں کچھ اور بھی کیا. تو ہم گفتگو کر رہے تھے ایک بہت بڑے شخصیت کی, اور حافظ عثمان صاحب نے ہمیں بتایا گفتگو میں کہ خالد محمود صاحب نے پاکستان میں ڈڈیال کے پاس ایک علاقہ ہے, نام بتائیں گاؤں کا, سیالی عمر خان. سیالی عمر خان, جہاں پہ 1944 میں دادا میر حیدر نے پہلا اسکول قائم کیا, اور وہاں کے لوگوں نے اسکول میں بچوں کو بھیجنے سے انکار کر دیا کہ ہمارے جانور کون چرائے گا, ان کو باہر کون لے جائے گا. اور دادا میر حیدر کو 1945 میں جب انہوں نے پابند سلاسل کیا تو انہوں نے گورنمنٹ سے ریکویسٹ کی, برٹش گورنمنٹ سے, کہ مجھے میرے اپنے گاؤں میں آپ ہاؤس اریسٹ کریں. ان کو ان کے گاؤں میں ہاؤس اریسٹ کر دیا گیا. انہوں نے گاؤں کے سب لوگوں کو اکٹھا کیا کہ آپ اپنے بچوں کو اسکول میں جانے دیں, آپ کے ڈنگر میں چرایا کریں. اور پھر اس طرح وہ اسکول چلا جس میں خالد محمود صاحب اور حافظ صاحب نے پڑھائے. تو آج اس محفل میں, اور میں نے ان کو بتایا کہ جی میں بھی دادا میر حیدر کے فالوور میں سے ہوں, اور کشور نحیم صاحبہ بھی ان کے فالوور میں سے ہیں, تو یہ بڑے خوش ہوئے اور کہا کہ میں آتا ہوں اور ان سے ملاقات بھی کرتا ہوں, اور آپ سب سے دیدار بھی ہوتا ہے. تو یہ دیکھیں کتنے آنر کی بات ہے کہ آج ہم ہاؤس آف کامن, اور میں 80s میں جب یہاں پہ آیا تو کشور نحیم صاحبہ آپ کے مرحوم خامن سعودی عرب میں تھے, اور بہت ہی میری طرح شوقین مزاج تھے. نہیں بولا بیرسٹر ہمایوں رائے صاحبہ بہت شوقین مزاج. کیا میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ یوسف کامران, یوسف اور زلیخا کا تو مزاج ہے آپس میں بہت عاشقانہ. تو ہم اکثر ہمراز حسن کے وہ دوست تھے. آج میں ہمراز حسن کی کمی محسوس کر رہا ہوں, وہ یہاں تشریف نہیں لا سکے. آئی ہوپ کہ ان کو پتا ہوگا کہ آپ یہاں ہیں. اور انہوں نے مجھے بیس واٹر اور الز کوٹ کی سڑکوں پہ ہم نے خوب سیریں کی, اور ہم نے دیکھا کشور نحیم صاحبہ کو جب بھی میں آرٹیکل ان کا پڑھتا ہوں تو بڑے غور سے پڑھتا ہوں, چونکہ اس ہر آرٹیکل میں, ہر ان کے شعر میں, ہر ان کے ادب میں ایک لفظ اور ہر میں ایک پیغام ہوتا ہے. اور وہ پیغام ہوتا ہے عوام کے لیے, غریبوں کے لیے, اور دنیا کے مظلوموں کے لیے. وہ فلسطین میں بستے ہوں, وہ ایتھیوپیا میں بستے ہوں, وہ پاکستان میں بستے ہوں, انڈیا میں بستے ہوں, یا دنیا کے کسی بھی خطے میں. اور یہی یوسف کامران کی بھی شاعری اور ادب تھا. آئیے آج ہم یہ شام منائیں کشور نحیم صاحبہ کے ساتھ. لیکن اس سے پہلے کہ میں سٹیج اپنے جو لندن کی جان ہے, اردو مرکز کی جان ہے, آپ سب کے پیارے بھائی ہیں, میرے بھی بڑے بھائی ہیں, ان کو دوں, اس سے پہلے میں خالد محمود صاحب سے کہوں گا کہ وہ آل پارٹی پارلیمنٹری گروپ جس کے وہ ٹریجرر ہیں, اور اگلے مہینے ہم دوبارہ الیکشن کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے یہ اس الیکشن میں نہ کھڑے ہوں کہ ہار جائیں, تو آج ان کا ٹریجرر آپ ویلکم کریں کہ یہ اس کو اپنے کریں.
How do you follow that? Thank you, Mishari Saab. It is the only post that I hold in Parliament of a treasurer which has no money in the account. So whoever wants to take it on, I wish them all the best. Ladies and gentlemen, respected guests, it's a huge privilege to be here today. Unfortunately, I thought we were going to start at 6 o'clock because I have another engagement at 7, which I'm running late for. It's outside the place, which I need to be at. And really, I'm very, very proud to be here among such an august gathering of people. I think it's hugely important to recognize the talent that is of Pakistani origin, which is absolutely fantastic. Kishore Nahid Saab and most of the scholars that are side by them, this is why I speak English, because my Urdu is not very good. And so, a huge privilege. And I think, considering what is currently going on around the world, there are huge issues that we should look at, and also particularly in relation to Pakistan, where Pakistan is, and where it needs to be as an international player. I think there's a huge vacuum that needs to be filled. And that vacuum can only be filled if people understand the heritage, the culture. We have more academics, we have more philosophers and thinkers. It is only a country that is able to move forward when they have the right combination of those people together to move society forward. Because society moves forward not just by purely walking on people's head and gaining capital, more so of its heritage, of its culture, of its understanding. I think those things are very, very important. And such a great gathering here today of those people, I'm sure. Certainly in this room, that vacuum will be filled. And I certainly hope that it filters down to Pakistan and the society and the community that is part of. There are huge talents within Pakistan. But unfortunately, of late, they've not been able to get that sort of hearing. And I talk about recent history over the last almost 25, 30 years. And that needs to change. I was hugely privileged. And again, Qadi Umar Khan and Salim Khan are not part of Diyal. They're a part of Khalil Saida district. And we have a member of parliament here, Usman Saab, a huge privilege to be here with him. And that's where my mother and her family originate from. That's where I went to school. I was very fortunate that I went to that school that was built by Dada Mir Haider Saab, and I was just recognized him of who he was before his unfortunate death. He started that school first of all in the gorge between the two villages. There's a huge gorge through which the river runs, and unfortunately, when the dam was built, the consequence that we felt across was that the swelling of the rivers on our side as well. So that he hugely brought that up. So we had to move the school. He built the school with his own sweat and bloods and the effort that he had by himself and support from very few people in the community around him. He believed that was the most important thing to move forward, because education is the best way to move any society forward, and he believed in that. And it was sometime afterwards that he managed to get, when he moved the school up on a higher plane in Qadi Khan, that it's continued, and the state was then able to take ownership of it and move forward. And it was his thinking. And I suppose perhaps I wouldn't have been standing here until I passed the 4th grade in school before I was able to join my father here in this country. And I always recognise the huge, immense contribution that he made, not just to me, but many others who have come from that school and have started off in that very small part of Pakistan where we originated from. And I think that just shows, and people like Mishari Saab and others who benefited from the direct teaching of Dada Mir Haider Saab is a huge privilege. But just to say, I don't want to take too much of your time because I've also got to get somewhere else as well. Just to say, really, we do still need the Dada Mir Haiders of today. We need people. We need people with those intellectual abilities, those passions of what to do about the people, and particularly young people, about the education of the people for the country that badly, badly needs it. And I think that's the most important thing that I can say about him and what we're doing. And Nahid Saab, I think it's a huge privilege to have you here today. In this place in Parliament, we rarely get the sort of intellectuals that we're here in this room, and certainly yourself at the head of that is a huge honour for us. And I think it's important that we recognise that. Certainly I wish to recognise that. And I think it's very important that we do that. As I said, I'm sure with the recordings, the Mishari will inform you. But please, next time you're here,
please give us a bit more notice, so perhaps we can, I can have the privilege to have a sitting with you as well as a big group. So thank you. My apologies for the fact that I get to leave. So please, Mr. Shai, I'm sure will take you on board and deal with that. Thank you very much. Khalid Mahmood Sahib, thank you very much. It is a privilege, as Khalid Sahib has said. Kishwar Nahid is today's Dada Mir, and there are many Dada Mir others in Pakistan, Khalid Sahib, and we will. And can I say that the chairman of All Party Parliamentary Group, Dave Anderson, is not in London. He is in Bladen, 300 miles away from London. So his apologies, and then let me hand over to Dr. Javed Sheikh Sahib, the president, and John लंदन की उर्दू सर्विस। वापस उर्दू में आ जाए ना? जी मैं आ गया, इसीलिए मैंने कहा है कि वो जान है उर्दू की। और डॉक्टर जवेद शेख साहब। ख़वातीन व हज़रात, मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ आप सबका कि आप लोग यहाँ तशरीफ़ लाए और इस महफिल को रौनक बख्शी। कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं जिनको सॉल्व करना बहुत ज़रूरी होता है। एक तो ये था कि खालिद महमूद साहब को कहीं जाना था, तो इसलिए उनकी तकरीर पहले करवा ली गई। और दूसरी बात यह है कि जियो वाले इजहार कर रहे हैं कि भाई आउट ऑफ टर्न अगर किश्वर नाहिद साहिबा एक नज़्म पढ़ दें ताकि वो इसको नशर कर सकें अपने शाम के प्रोग्राम में। तो अब मुझे मालूम है कि आप हजरात की क्या राय है। अगर आप चाहते हैं तो ये आउट ऑफ टर्न अगर किश्वर नज़्म पढ़ दें उसके बाद बाकी शुक्रिया। वो नज़्म जिसको कि पाकिस्तान में औरतों का कौमी तराना कहा जाता है, उससे मैं आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करती हूँ। और वो ये है कि ये हम गुनाहगार औरतें हैं, ये हम गुनाहगार औरतें हैं जो अहले जुबा की तमकनत से न रोब खाएं, न जान बेचें, न सर झुकाएं, न हाथ जोड़ें। ये हम गुनाहगार औरतें हैं जो अहले जुबा की तमकनत से न रोब खाएं, न जान बेचें, न सर झुकाएं, न हाथ जोड़ें। ये हम गुनाहगार औरतें हैं जिनके जिस्मों की फसल बेचें जो लोग वो सरफराज ठहरे, नियाबत इम्तियाज ठहरे, वो दावर अहले साज ठहरे। ये हम गुनाहगार औरतें हैं कि सच का परचम उठा के निकले तो झूठ से इशाराएं अटी मिले हैं, जो बोल सकती थी वो जुबानें कटी मिले हैं, हर एक दहलीज पे सजाओं की दास्तानें रखी मिले हैं। ये हम गुनाहगार औरतें हैं कि अब ताक़ुब में रात भी आए तो ये आंखें नहीं बुझेंगी, कि अब जो दीवार गिर चुकी है इसे उठाने की जिद न करना। ये हम गुनाहगार औरतें हैं जो अहले जुब्बा की तमकनत से न रोब खाएं, न जान बेचें, न सर झुकाएं, न हाथ जोड़ें। शुक्रगुजार हूँ किश्वर नाहिद साहिबा का। मैं दरख्वास्त करता हूँ हमारे मेहमान पाकिस्तान से आए हुए नईमुल हक साहब कि वो यहाँ स्टेज पे तशरीफ लाएं। किश्वर नाहिद साहिबा की तहरीरों से मैं सिर्फ दो छोटे से इक़्तिबास पेश करना चाहूँगा। एक, इन्होंने अपनी आप बीती में लिखा है कि बड़े सगीर के मुआशरे ने 1940 से लेकर अब तक जिस तरह अपने आप को बदला है, इन तब्दीलियों ने किस तरह हमारी गलियों, मोहल्लों और घरों से लेकर जहन में कहाँ कहाँ जाले बुने हैं और कहाँ कहाँ खिड़कियाँ खोली हैं, ये सब अहवाल अपना बयान चाहता है। ये मैं इस तनाजुर में पढ़ रहा हूँ कि किस चीज़ से किश्वर नाहिद की शायरी को इबारत है, और ये इन्होंने जितनी भी शायरी की है इस बात को ध्यान में रखते हुए की है कि माशरे में जो तब्दीलियाँ हुई हैं उनके हिसाब से इन्होंने अपनी शायरी में
वैसे ही रद्द बदल लाया है। दूसरा इक़्तिबास ये है कि मेरे मुल्क में औरत का कोई नाम नहीं है, वो तो खुद से वाबस्ता रिश्तों के ज़रिए शनाख्त पाती है, वो बहन है, बीवी है, माँ है, बेटी है, मगर वो खुद भी कुछ है। तो वो जो इनकी फेमिनिस्ट नज़में हैं वो इस चीज़ से इबारत पाती हैं। ये खुद भी कुछ और माशरती अहवाल ही किश्वर की शायरी के मुहर्रिक हैं, और इन्हें 2 चीज़ों पर मुश्तमिल किश्वर नाहिद साहिबा ने 13 किताबें शायरी की तख्लीक की हैं। अल्लाह इन्हें अच्छा रखे कि तख्लीक के सौते अभी तक जवान हैं और शायरी भरपूर हो रही है। एक मरतबा डॉक्टर अनवर सदीद ने लिखा था कि हश्र के दिन जब खुदा ये पूछेगा कि तूने दुनिया में क्या किया, तो मैं उसके जवाब में अपनी तमाम तसानीफ पेश कर दूँ। अगर किश्वर भी अपनी तसानीफ खुदा के हुजूर में पेश करेंगी तो बकौल मुशफिक ख्वाजा साहब के फरिश्तों के लिखे पर पकड़े जाने की बजाय अपने ही लिखे पर गिरफ्त में आ जाएंगे। अभी कल ही किश्वर ने बताया कि खातून किश्वर की शायरी और फ़न पर PhD कर रही हैं। तहकीक हमारे वक्त की एक अहम ज़रूरत है, और किश्वर की शायरी पर इसलिए भी ज़रूरी है कि जो बात बेलाग और बहादुरी से किश्वर माशरे के इन पहलुओं से पर्दा उठाती हैं जो कि हमारे दूसरे अदीब हमेशा मख्फी रखना चाहते हैं। जुर्रत इजहार ये है किश्वर का दूसरा नाम। हम खुश नसीब हैं कि ये हमारे दरमियान मौजूद हैं और आज हम इनसे जी भर के शायरी सुनेंगे। मैं अरशद लतीफ़ साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो आके एक मुख्तसर सा मजमून या जो भी किश्वर के तारुफ के बारे में कहना चाहें वो कहें। खातिन हज़रात, डॉक्टर साहब ने कुछ जो बात कर दी उनके बारे में, मैं सिर्फ इनका थोड़ा सा बायोडेटा। सैयदा किश्वर नाहिद 1940 में बुलंदशहर इंडिया में पैदा हुई। ये 7 बरस की थी जब हिंदुस्तान की तकसीम हुई पाकिस्तान में, और मैंने इनके बारे में पढ़ा कि इन्होंने उस ज़माने को देखा। 1949 में अपने ख़ानदान के साथ लाहौर में आकर आबाद हुई। पंजाब यूनिवर्सिटी से इकनॉमिक्स में मास्टर्स किया। पहला मजमूआ 1968 में शाया हुआ और आदम जी अवार्ड का हकदार ठहरा। वो पाकिस्तान के कई कौमी अदारों में आला हुक्म पर फाइज रही, जिसमें नेशनल सेंटर अवार्ड्स, फिर ख़ास कर जो जिसमें समझिए कि हमें ज़्यादा दिलचस्पी, वो माह नौ की अदालत जो एक रिसाला निकलता रहा है, वो इंतहाई खूबसूरत, और जितनी देर ये रही हम नए नए शायरों से और अच्छी शायरी से महसूस होते रहे, पढ़ते रहे। वो रिसाला तक चल रहा है। फिर उन्होंने उसका माह नौ का एक नंबर भी शामिल किया जो यादगार अदम एक संगीत की हैसियत रखता है। इनके कुलियात दश्ते कैस में लैला, ये इसमें इनके 8 शेर मौजूद हैं, और इस दश्ते कैस में रॉबर्ट फ्रॉस्ट, एबल रौदा और दुनिया के दूसरे अजीम लिखने वाले जो हैं वो इस तरह शामिल हैं कि उनके तराजुम इसमें हैं। इसमें तोड़ी हैं, इसमें गज़लें हैं, इसमें नस्में हैं। अब आ जाती बात आप, मतलब मैं समझता हूँ शायद मैं वो इंसाफ नहीं कर सकता कि इनकी शायरी पर कोई पूरी तरह से कुछ कह सकूँ। मैं अपने आप को शायद इसलिए मैं अपने आप को शायद ही नहीं समझता कि ये दश्ते कैस जो है लगभग 1200 सफ़हात पर मुश्तमिल है, 1300। और मैंने जब इसे पढ़ना शुरू किया तो मैं तो थक कर एक कोने में बैठ गया कि उससे आगे जाने की हिम्मत नहीं थी। इसमें गज़ल जो है वो पूरी तरह हमारी जो रवायत है, शेरी रवायत, उसमें रची बसी है। आप शेर पढ़ेंगे तो अलग कर लें उस शेर को। बाज़ दफ़ा आमतौर पर शेर नाम से पहचाना जाता है। बेशक इनकी इंफरादियत है, लेकिन वो कभी यूँ लगता है कि किसी उस्ताद का लिखा हुआ शेर है।
اور کبھی یوں لگتا ہے کہ کسی آج کے بہت ہی تازہ کار شاعر جو ہے اس کا لکھا ہوا شعر ہے. میں جو ان کے سب سے پہلے شعر سے جہاں واقع ہوا تھا وہ مجھے یاد تھا. کچھ اس قدر تھی گرمی بازار آرزو، دل جو خریدتا تھا اسے دیکھتا نہ تھا. یہ یقیناً لاہور کا زمانہ ہوگا، شروع کا زمانہ ہوگا، اور یہ سلسلہ یہ زندگی کا 20واں سال تھا کہ اس زمانے میں بس آپ سوچتے نہیں جو بھی ملے. اور یہ سلسلہ دیکھیے اس شعر کو اگر آپ اپنے معاشرتی پس منظر میں بھی دیکھیے اور سیاسی پس منظر میں خاص طور پہ، لیکن آہستہ آہستہ مجھے شاہدہ حسن کا ایک شعر یاد آ رہا ہے جس میں انہوں نے کہ میں نے ان سب چڑیوں کے پر کاٹ دیے جن کو اپنے اندر اڑتے دیکھا تھا. لیکن کشور نائی صاحب کا معاملہ بالکل مختلف ہے. انہوں نے پر کاٹے نہیں ان چڑیوں کے، انہوں نے ان پروں کو اور مضبوط کیا اور اڑان بھری، اور پھر وہ منظر دیکھے جو عام طور پہ کم یہ بلندی کو اڑنے والے نہیں دیکھ سکتے. اور پھر ان منظروں کو انہوں نے اپنے شعر میں پوری طرح سے بیان کیا، ہمیں اس میں شامل کیا. ایک شعر اور پیش کرتا ہوں. وہ دعوت سخن ایجاد پھر نہیں آئے، شب وصال تیرے پھر نہیں. اب اس میں اس کی پختگی آپ دیکھیے کہ کر تو ہے ہی اس جگہ جہاں اساتذہ ہی پر مارتے ہیں. کچھ بھی بدلے پھر کبھی خلق کے دن بھی بدلے، کچھ بھی بدلے پھر کبھی خلق کے دن بھی بدلیں، لوگ پوچھیں گے وگرنہ کہ بھلا کیا بدلا. یہ جو کام کر رہی ہیں یہ شعر اس کی بڑی اچھی طرح عکاسی کرتا ہے کہ یہ بدلنا چاہتی ہیں. جو ارد گرد جو ظلم اور جو مصنوعی جبر ہے ہمارے معاشرے میں، ان کو بدلنے کی خواہش خالی خواہش نہیں رکھتی، عملی طور پر اس میں یہ شامل ہے. میں چند نظموں کی دو تین لائنیں اس حوالے سے پیش کروں گا کہ جب میں نے نظمیں پڑھی تو نظم کا پورا جو بھی جسے آپ جدید نظم کہتے ہیں اس کا جو بھی جس طرح وہ نظم بنائی جاتی ہے، جس طرح لکھی جاتی ہے، جس طرح موضوع کو ٹریٹ کیا جاتا ہے، جس طرح اس کو لکھا جاتا ہے، لیکن اس میں کچھ لائنیں جو بہت ہی کم لوگوں کے یہاں نظر آئیں گی. غالباً ہماری فارسی روایت میں وہ چیز ہے، اردو میں بہت کم ہے کہ آپ انفلوئنس قائم کرتے ہیں. پھر کچھ سطریں ایسی آتی ہیں جس میں آپ نتیجہ اس کے نتیجے کا اعلان کرتے ہیں، اور نتیجے کا اعلان کرنا شعر میں آپ سے بہت سارا مطالعہ، بہت ساری ریاضت اور اس تجربے سے پوری طرح، یعنی وہ آگ کی آنچ سے نہیں، اس کے پوری طرح اس آگ میں جل کر پھر زندہ بچ کر نکلنے کے بعد ہی آپ اسے بیان کر سکتے ہیں. سامن موڑ محرم، اس میں چند لائنیں ہیں. خلا پہن کر ہوا میں پر مارنا زندگی ہوتی تو میرا آشیانہ بہت اونچا ہوتا. ایک نظم ہے منفی ضرب جمع برابر منفی. پیروں تلے جنت کی ہیروئن لولی پاپ کی قیمت بڑھ رہی ہے. پیروں تلے جنت کی ہیروئن لولی پاپ کی قیمت بڑھ رہی ہے، اور تیری قیمت گھٹ رہی ہے. کشور نعید ایک بہادر شاعرہ ہیں. انہیں میرے نزدیک تمغہ امتیاز کے ساتھ ساتھ تمغہ شجاعت ملنا چاہیے. خواتین و حضرات، اب یہ مرحلہ ہے، پروگرام مختصر ہے. اب کشور ناہید سے ہم چاہتے ہیں کہ سوال و جواب بھی کیے جائیں، کیونکہ این ایوننگ وتھ کشور ناہید اس پروگرام کو ہم نے بل کیا تھا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو چند مقامی شعراء یہاں موجود ہیں ان سے ہم ایک غزل بھی سننا چاہتے ہیں تاکہ
ان کو معلوم ہو کہ ہمارے یہاں لندن میں کیسا ادب تخلیق کیا جا رہا ہے. بہت صحیح. تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کشور کہ آپ سوال جواب پہلے لینا چاہیں گے؟ نہیں, وہ گفتگو کے ساتھ ہی آ جائے گا. آپ میں شعر سننا چاہوں گا. پہلے شعر سننا چاہیں گے؟ چلیے ٹھیک ہے. تو پھر میں میری فہرست میں اس وقت ایوب اولیاء, ارشد لطیف, یشب تمنا, رفعت شمیم صاحب اور ڈاکٹر ہلال فرید صاحب ہیں. ان کے علاوہ کوئی شاعر ایسے ہیں جو اس وقت موجود ہوں؟ تو میں جناب ایوب اولیاء صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی شعر جی ارشاد. استاد کی ربائی سے شروع کرتا ہوں. غنچے تیری تقدیر پہ دل ہلتا ہے, غنچے تیری تقدیر پہ دل ہلتا ہے, صرف ایک تبسم کے لیے کھلتا ہے. غنچے نے کہا بابا اس دنیا میں یہ ایک تبسم بھی کسے ملتا ہے. چند شعر پیش کرتا ہوں پنجابی میں. آپ نے شامل بول مار تو یہ کافی لکھنے کی کوشش کی ہے, اس کی استھائی ہے. وے اڑیا وے اڑیا تو کیڑا ویڑا وے اڑیا تو کیڑا ویڑا پڑیا, ہیر سیال نو لے گئے کیڑے, اس رخ تو پھل نہ چڑھیا. وے رانجنا وے ڈھولنا وے اڑیا تو کیڑا ویڑا. انترا ہے. جوگی بنیو کن پڑوائے, پالنار دی سیوا کیتی, مجھی دا تو چاکر بنیا, جانگن کچھ نہ سریا. وے اڑیا تو کیڑا ویڑا پڑیا. تخت ہزارے تا سائیں تو سیں, اے چھیڑا کیوں پھڑیا. وے اڑیا تو کیڑا ویڑا پڑیا. یہ ترانہ محبت کسی ایسی لے میں گاؤ, یہ ترانہ محبت کسی ایسی لے میں گاؤ, کبھی بند پڑے تو مطرب مجھے گیت وہ سناؤ. جسے سن کے میں بھی تڑپوں, جسے گا کے تو بھی روئے, بھرے سسکیاں ہوا بھی جلے آگ کے الاؤ. یہ ترانہ محبت کسی ایسی لے میں گاؤ. اور شعر عرض کیا ہے. وہ حسین صورتیں تھیں جو چلی گئیں جہاں سے, وہ حسین صورتیں تھیں جو چلی گئیں جہاں سے, انہیں گا کے اب بلاؤ, انہیں یاد کر کے. وہ حسین صورتیں تھیں جو چلی گئیں جہاں سے, انہیں گا کے اب بلاؤ, انہیں یاد کر کے گاؤ. شعر عرض ہے. میں رہین غم نصیبی میں امین غم پرستی, میں رہین غم نصیبی میں امین غم پرستی, میرا دل غموں کا دریا, اسے طے کر تو جاؤ. یہ ترانہ محبت کسی ایسی لے میں گاؤ. پھر عرض کیا ہے. وہ بچھڑ گئے ہیں ہم سے تو ضرور غم ہے ہم کو, وہ بچھڑ گئے ہیں ہم سے تو ضرور غم ہے ہم کو, یہ دعا ہے سر بسیدہ میرے مولا پھر ملاؤ. یہ ترانہ محبت کسی ایسی لے میں, یہ ہے سانس آنی جانی, یہ نفس ہے جان فانی, یہ ہے سانس آنی جانی, یہ نفس ہے جان فانی, جو بچا ہو اس عزت سے اسے ڈھونڈ کر بلاؤ. اور مقترض کیا ہے. میرا لہجہ سرمدی ہے, میرا نغمہ جاویدانی, میرا لہجہ سرمدی ہے, میرا نغمہ جاویدانی. یہ غزل ہے اولیاء کی کسی راگ میں. خواتین و حضرات, اس مشاعرے میں کوئی تقدیم نہیں ہے, کوئی تاخیر نہیں ہے, کوئی احترام بالکل نہیں کیا گیا بڑے شاعروں کا. تو اس لیے میں درخواست کرتا ہوں رفعت شمیم صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی غزل سنائیں. ابھی نکل گئے. چلیے تو پھر میں ارشد لطیف صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنی غزل پیش کریں.
جو چاہے اس کا عنوان ہے تمدن کے ٹکڑے. ٹکڑے اکٹھے کرو اس تمدن کے ٹکڑے اور اپنی اپنی تہذیب کے منہ پہ مارو. اکٹھے کرو اس تمدن کے ٹکڑے اور اپنی اپنی تہذیب کے منہ پہ مارو. پکارو مدد کے لیے دشمنوں کو پکارو. پکارو مدد کے لیے دشمنوں کو پکارو. مجھے مت بتاؤ کہ میں کون ہوں اور تم کون ہو اور وہ کون. مجھے مت بتاؤ کہ میں کون ہوں اور تم کون ہو اور وہ کون ہے. تو جوڑو بکھرتے ارادوں کو جوڑو. تو جوڑو بکھرتے ارادوں کو جوڑو. ذرا پہلے سہمے ہوئے دل کو ڈھارس دو پھر اس کو توڑو. تو جوڑو بکھرتے ارادوں کو جوڑو. ذرا پہلے سہمے ہوئے دل کو ڈھارس دو پھر اس کو توڑو. کبھی تم نے روحوں کے نوحے سنے؟ کبھی تم نے روحوں کے نوحے سنے؟ نہیں سن سکو گے. رکاوٹ کی تاریک قربان گاہوں میں سر سبز ہریالیوں کا لہو بہہ رہا. کبھی تم نے روحوں کے نوحے سنے ہیں؟ نہیں سن سکو گے. رکاوٹ کی تاریک قربان گاہوں میں سر سبز ہریالیوں کا لہو بہہ رہا ہے. کوئی اس طرف دیکھتا بھی نہیں. کوئی اس طرف دیکھتا بھی نہیں ہے. سنا تھا کوئی ہے جو سب دیکھتا ہے. سنا تھا کوئی ہے جو سب دیکھتا ہے. نہیں دیکھتا وہ بھی کب دیکھتا. اب میں درخواست کرتا ہوں رفعت شمیم صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں. ایک نظم پیش کرتا ہوں. اس کا عنوان تو کچھ اور تھا لیکن ثنا خان تقدیس مشیخ خوف سے میں نے اس کو بلا عنوان رکھا ہے. عالم دیوان کی تھا ہوش کے انداز میں. عالم دیوان کی تھا ہوش کے انداز میں. تھی جنون وصل کی شوخی ادائے ناز میں. داغ حسرت کی طرح روشن تھے بندے پیرہن. داغ حسرت کی طرح روشن تھے بندے پیرہن. خلوت دل میں منور تھی سراپا انجمن. جل اٹھی شمع لہو میں گرمی رخسار سے. جل اٹھی شمع لہو میں گرمی رخسار سے. خاموشی محو تکلم تھی لبے گلنار سے. خاموشی محو تکلم تھی لبے گلنار سے. آتش سیال کا ساغر جو چھلکایا ذرا. آتش سیال کا ساغر جو چھلکایا ذرا. پھر تو موجوں میں کفے دریا ابھر آیا نرا. دفتن شانوں پہ زلفوں کو پریشان کر دیا. چھیڑ کر کلیوں کو وحشت میں گلستہ کر دیا. ایک ہجوم آرزو تھا جسم کے ہر موڑ پر. چاند اترا تھا زمین پر بس میں انجم چھوڑ کر. منتظر تھا دل متائے امن و راحت کے لیے. منتظر تھا دل متائے امن و راحت کے لیے. آگ فرش راہ تھی تکمیل حسرت کے لیے. انتظار چشم دل نے جب پریشان کر دیا. بے خودی نے عقدے مشکل کو آسان کر دیا.
तुम दिए मैं से शिकस्ता जाम मीना हो गए, तुम दिए मैं से शिकस्ता जाम मीना हो गए, जख्म दिल के दर्द का खुद ही मदावा हो गए। वादिये गुर्बत में गुम था राह नवर्दे शौक, वादिये गुर्बत में गुम था राह नवर्दे शौक यूं, जैसे शायर खो गया हो खुद ही अपनी फिक्र में, जैसे शायर खो गया हो खुद ही अपनी फिक्र में, हो सराबे वस्ल जैसे रेगज़ारे हिज्र में। अब मैं दरख्वास्त करूँगा अपने मोहतरम दोस्त यशब तमन्ना साहब से कि वो तशरीफ लाएँ और गज़ल अता करें। जी यशब दो तीन शेर गजल के और करें पूरी असरार कैसे खोल दूं उस आबो गिल के मैं, असरार कैसे खोल दूँ उस आबो गिल के मैं, असरार कैसे खोल दूं उस आबो गिल के मैं, महका हुआ हूँ रात की रानी से मिलकर मैं। वाह असरार कैसे खोल दूं उस आबो गिल के मैं, महका हुआ हूँ रात की रानी से मिलके मैं, क्या जानिए कि कैसे पता चल गया उसे, क्या जानिए कि कैसे पता चल गया उसे, कहता नहीं किसी से भी अहवाल दिल के मैं, क्या जानिए कि कैसे पता चल गया उसे, कहता नहीं किसी से भी अहवाल दिल के मैं, असरार कैसे खोल दूं उस आबो गिल के मैं। गजल के चलते पेश करता हूं। उठा रखा था मैंने कारीगिरिया, उठा रखा था मैंने कारीगिरिया, उठा रखा था मैंने कारीगिरिया, मगर है सामने दीवारें गिरिया, उठा रखा था मैंने कारीगिरिया, मगर है सामने दीवारें गिरिया, मोहब्बत में मुहर्रम आ चुका है, मोहब्बत में मुहर्रम आ चुका है, कोई कैसे करे इनकारे गिरिया, अच्छा भाई मोहब्बत में मुहर्रम आ चुका है, कोई कैसे करे इनकारे गिरिया, मुझे मालूम है मैं जानता हूँ, मुझे मालूम है मैं जानता हूँ, नहीं उठेगा मुझसे बारी, मुझे मालूम है मैं जानता हूँ, नहीं उठेगा मुझसे बारी गिरिया, यशब कल रात में जी भर के रोया, यशब कल रात में जी भर के रोया, उठा हूँ आज मैं सर शारे गिरिया, यशब कल रात में जी भर के रोया, उठा हूँ आज मैं सर शारे गिरिया, उठा रखा था मैंने काहे गिरिया, मगर है सामने दीवारें गिरिया, मोहब्बत में मुहर्रम आ चुका है, कोई कैसे करे और अब मैं ज़हमत कलाम दूंगा डॉक्टर हिलाल फरीद साहब को कि वो तशरीफ लाएं और अपनी गज़ल अता करें। इश्क में है कमाल जो जब वो कमाल आ गया, इश्क में है कमाल जो जब वो कमाल आ गया, हिजर के दिन गुजर गए वक्त विसाल, इश्क में है कमाल जो जब वो कमाल आ गया, हिजर के दिन गुजर गए वक्त विसाल आ गया, उन नजरें उठा के देखिए दुनिया इसी का नाम है, नजरें उठा के देखिए दुनिया इसी
का नाम है, इसका उरूज हो गया, उस पे ज़वाल आ गया। नजरें उठा के देखिए, दुनिया इसी का नाम है, इसका उरूज हो गया, उस पे ज़वाल आ गया। वो देखी वफाए दोस्तां, देखी अदाए दिलबरा, देखी वफाए दोस्तां, देखी अदाए दिलबरा, शहरे तरफ से दिल मेरा होके निढाल, शहरे तरफ से दिल मेरा होके निढाल ला गया। वो मिलने जरूर आइए, पहले मगर बताइए, मिलने जरूर आइए, पहले मगर बताइए, कैसे हुजूर आपको मेरा ख्याल। मिलने जरूर आइए, पहले मगर बताइए, कैसे हुजूर आपको मेरा ख्याल आ गया। वो धोखा किसी से खा गए, कैसे जिएंगे आप फिर। धोखा किसी से खा गए, कैसे जिएंगे आप फिर। इतनी सी बात पर अगर दिल में मलाल, धोखा किसी से खा गए, कैसे जिएंगे आप फिर। इतनी सी बात पर अगर दिल में मलाल आ गया, तो हमको खबर कहाँ थी वो ऐसा सितम ज़रीफ है। हमको खबर कहाँ थी वो ऐसा सितम ज़रीफ है। हमने किया था प्यार और उसको जला दिया। हमको खबर कहाँ थी वो ऐसा सितम ज़रीफ है। हमने किया था प्यार और उसको जला ला गया। और कल जो मिला था रात वो कहनी नहीं थी बात। कल जो मिला था रात वो कहनी नहीं थी बात। वो दिल की तलब को क्या करें, लब पे सवाल। कल जो मिला था रात वो कहनी नहीं थी बात। वो दिल की तलब को क्या करें, लब पे सवाल ला गया। वो अच्छा बुरा तो वो कहे जिसको हिलाल होश हो। अच्छा बुरा तो वो कहे जिसको हिलाल होश हो। सुन के कलाम आपका हम पे तो हाल ला। किशोर जी, इससे एक नमूना था आपको बताने के लिए कि हमारे यहाँ भी कैसा कैसा तकलीफ हो रहा है। तो अब मैं आपको ज़हमत देने से पहले नईमुल हक साहब को बुलाना चाहता हूँ। मैं उनसे, उनके भाई रहीमुल हक साहब मेरे कॉलेज किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज में पढ़ा करते थे। वो मुझसे सीनियर थे, लेकिन उन्होंने अपना दस्ते शफ़क़त मुझे हमेशा रखा और मैं उन्हीं के साए में पलकर डॉक्टर बना। मैं बहुत उनका ममनून हूँ। 25 बरस हो गए हैं मेरा उनसे कोई राब्ता नहीं है, लेकिन उसके बावजूद मेरे दिल में जो उनका एहतराम और कदर है वो हमेशा रहेगी। मैं ज़हमत दूंगा नईमुल हक साहब को कि वो आएँ, जो चाहें कहें, चाहे सियासी बात करें, चाहे जो भी कहें। सियासी नहीं करें। मैं सियासी इसलिए कह रहा हूँ कि मेरा मसलक उनके मसलक से मिलता जुलता है। शुक्रिया बहुत बहुत। सबसे पहले तो मुझे एक यहाँ पर इस महफिल में अपने आप को पाकर एक एहसास कमतरी महसूस हो रहा है। ख़ास तौर पे किशोर नाहिद साहबा की मौजूदगी में मैं समझता हूँ कि मेरा मुकाम ही नहीं, और जो तमाम शोरा जिन्होंने इस वक्त अपने कलाम का सुनाया, मैं तो यकीन मानिए कि मैं बहुत मुतासिर हुआ उनसे। और मुझे यकीन नहीं आ रहा कि हिंदुस्तान में भी इस वक्त उर्दू अदब के ऐसे ऐसे कलाम कहने वाले मौजूद हैं जिनको आज मैंने यहाँ पर सुना। किशोर नाहिद साहबा से मेरी ज़्यादा वाक़फ़ियत नहीं है, मगर पूरे पाकिस्तान में और हिंदुस्तान में, और अब मैं देख रहा हूँ इंग्लिस्तान में, उनके बेशुमार चाहने वाले मौजूद हैं। उनके कॉलम्स मैंने अक्सर पढ़े हैं, उनकी शायरी मैंने नहीं पढ़ी, क्योंकि उर्दू शायरी से शायद मेरा इतना ज़्यादा वास्ता नहीं रहा जितना उर्दू नस्र से रहा। और मगर मैं ये जानता हूँ कि उन्होंने अपने कॉलम्स के ज़रिए पाकिस्तान में अहम मौज़ूआत पर जिन ख़यालात पे आधार किया है, उनके चाहने वालों की तादाद और ज़्यादा बढ़ गई है। मैं बेहद मशहूर हूँ डॉक्टर साहब आपका कि आपने मुझे मौका दिया
हालांकि आज मुझे पता भी नहीं था कि यहाँ पे इस नशिस्त का एहतमाम हुआ है, मगर हुमा प्राइस ने मुझे यहाँ मदूर किया और मुझे ये भी नहीं पता था कि किस सिलसिले में हो रही है, मगर मुझे बड़ी खुशी हुई है कि यहाँ पर बहुत पुराने साथियों से, दोस्तों से मुलाकात हो गई। ख़ासतौर पर राहिल खुर्शीद साहब नेशनल बैंक में मेरे सीनियर थे और मुझे बड़ी खुशी हुई कई साल बाद उनसे मुलाकात की, और बेशुमार यहाँ हमारे दोस्त मौजूद हैं। और तो मेरे लिए आज की शाम मैं समझता हूँ एक बहुत ही यादगार शाम रहेगी। मैं चंद दिनों के लिए पाकिस्तान से आया हूँ और पाकिस्तान के हालात, जिस ज़माने में मैं खुद इंग्लिस्तान में रहता था सन 80 के अशरे में, उस वक्त ये पाकिस्तानी टेलीविजन चैनल्स अपनी यहाँ से नशरियात नहीं करते थे, बल्कि पाकिस्तान में सिर्फ मेरा ख्याल सिर्फ PTV था और कोई था भी हो। मगर आज मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे रहने वाले जो पाकिस्तानी हैं वो पाकिस्तान के हालात से ग़ालिबन हम लोगों से ज़्यादा बाखबर हैं, और ये एक बड़ी खुशी की बात भी है। और मैंने ये भी देखा कि अक्सर पाकिस्तान में जो इस वक्त जिन मसाइल से हमारी कौम दो चार है, उसके बारे में कि यहाँ पर जो एक शऊर है आम पाकिस्तानियों में, वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है उस ज़माने के मुकाबले में जो सन 80 का अशरा जब मैं हिंदुस्तान में रहता था। लाशारी साहब, डॉक्टर साहब और यहाँ पे बेशुमार साथी हैं, मौलिया साहब, उर्दू मरकज़ के मुझे दिन याद आ जाते हैं जब इफ्तिखार आरिफ साहब यहाँ पर मौजूद हुआ करते थे। मुझे याद है एक शाम कुर्तुलैन हैदर साहिबा के साथ भी गुजरी थी, जो मेरी पसंदीदा मुसन्निफ़ रही हैं, और मुझे खुशी है कि उर्दू के शुरा, उर्दू अदब के यहाँ इतने कुदरदान मौजूद हैं, और मेरी ख्वाहिश है, मेरी दुआ है कि ये इसी तरह लंदन की शामें फलती फूलती रहें और ऐसे ही इशरत नाहिद साहबा जैसे लोग उनको अपनी शख्सियत से नवाजते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी अभी नज़र पड़ी सायरा बतूल आई है, तो ये खातून शायरा हैं, इनको सुनना ईश्वर आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सायरा बतूल तशरीफ़ लाई है। सबसे पहले तो ताख़ीर के लिए माज़रत चाहते हैं। आप फिक्र न करें, आइए वाला आप अगर पीछे गुफ्तगू बंद कर दें तो आवाज़ ज़्यादा अच्छी है। एक गज़ल के चंद अशार। मतलब है कि कैसा अंदाज़े मसीहाई है, कैसा अंदाज़े मसीहाई है, कैसा अंदाज़े मसीहाई है, शहर का शहर तमाशाई, कैसा अंदाज़े मसीहाई है, शहर का शहर तमाशाई है, और दिल को समझा लिया है ये कहकर, दिल को समझा लिया है ये कहकर, उसकी फितरत ही बेवफाई, उसकी फितरत ही बेवफाई है। और शेर देखिए कि हमको मालूम है कि वो क्या है, हमको मालूम है कि वो क्या है, उनसे देरीना आशनाई है, उनसे देरीना आशनाई है। अब एक नज्म पेश करना चाहूँगी। नज्म का उन्वान है मुझे देखो ये मैं हूँ, मुझे देखो ये मैं हूँ, नहीं पहचान पाए तुम भी मुझको, मुझे देखो ये मैं हूँ, नहीं पहचान पाए तुम भी मुझको, मुझे देखो ये मैं हूँ, मुझे देखो मेरी आंखों में इस बेरंग मौसम के हर एक अक्से परेशान में तुम अपना आप देखोगे, मुझे देखो मेरी आंखों में इस बेरंग मौसम के हर एक अक्से परेशान में तुम अपना आप देखोगे, मुझे देखो मेरे चेहरे पे फैली इन खिज़ा मंजर लकीरों में, मुझे देखो मेरे चेहरे पे फैली इन खिज़ा मंजर लकीरों में तुम्हारा नाम लिखा है, तुम्हारा नाम लिखा है, मुझे देखो मेरे बालों की स्याही के अंधेरे में, मुझे देखो मेरे बालों की
स्याही के अंधेरे में तुम्हारे मुंतजिर लम्हों के सब अहवाल, तुम्हारे मुंतजिर लम्हों के सब अहवाल, तुम्हारी ही जुदाई के वो माहो साल अब चांदी से लिखे हैं। मुझे देखो मेरे बालों की स्याही के अंधेरे में तुम्हारे मुंतजिर लम्हों के सब अहवाल, तुम्हारी ही जुदाई के वो माहो साल अब चांदी से लिखे हैं। मुझे देखो मेरे लब जिनको तुम कल फूल कहते थे, मुझे देखो मेरे लब जिनको तुम कल फूल कहते थे, जमाने की हवाएं गर्म ने पत्थर बना डाले, जमाने की हवाएं गर्म ने पत्थर बना डाले। बस अब पहचान भी जाओ, बस अब पहचान भी जाओ, मुझे देखो ये मैं हूँ जिसकी झोली में फकत बेरंग ख्वाबों के, तुम्हारी चंद यादों के बस अब कुछ भी नहीं बाकी, बस अब कुछ भी नहीं। जी किसका साझा क्या सवाल जवाब या शायरी? मैं बात शुरू करूंगी तो साथ ही सवाल जवाब हो जाएगा। आइए तशरीफ ले आइए। दोस्तों साथियों, बुजुर्ग तो मेरे सिवा और कोई नजर नहीं आता, तो ये समझती हूँ कि गुफ्तगू कहाँ से शुरू की जाए। उस लम्हे से जब मैंने अपनी अम्मा के साथ उनकी उंगली पकड़ के उनके काले बुर्क़े के साथ मुस्लिम लीग के जलसों में शिरकत की, या उन लम्हों से बात शुरू करूँ जब भाइयों के दरमियान बहन होने के नाते डंडा खेलते हुए हम भी आपस में डंडा उठाकर कहते थे बन के रहेगा पाकिस्तान, लेके रहेंगे पाकिस्तान। या फिर उन लम्हों की जानिब जाऊं जब मेरे बचपन ने एक ऐसी लड़की को देखा जो अलीगढ़ पढ़ती थी और हमारे लिए हीरोइन होती थी, और वो अगवा होने के बाद बाजियाब होकर जब शहर में आई तो उसके खून आलूद पाँव आज तक मेरे कैनवस पे मौजूद है। या फिर उन लम्हों की तरफ जाऊं जब सब लड़कियां जो अगवा हुई थी हिंदुस्तान में, ज़ैनब खातून नाम रखती होंगी लेकिन वो अजीत कौर हो गई थी, और जो पाकिस्तान में अजीत कौर थी वो ज़ैनब खातून हो गई थी इसलिए कि उनके ख़ानदान वालों ने उनको कबूल करने से इनकार कर दिया। या फिर कहाँ जाऊँ, वहाँ जाऊँ जहाँ पे कि मेरे अपने घर में मुझसे पूछा जाता था कि तुम आगे क्यों बढ़ना चाहती हो, क्यों आगे बढ़ना चाहती हो, और मेरे पास इसका जवाब नहीं था। सिर्फ एक किताब थी जो मुझे कहती थी कि मुझे पढ़ो, और किताब को पढ़ने से मेरी दुसराहत बढ़ती थी और मुझे किसी यारी की ज़रूरत पेश नहीं आती थी। मुझे उन लम्हों को भी ताज़ा करना है जब मेरे मुल्क में मार्शल लॉ लगने शुरू हुए, जब बुनियादी जमहूरियतें पैदा होनी शुरू हुई, और जब हमें कहा गया कि आप लोगों को इस पर नज़में लिखनी है। इनहराफ का लम्हा उसी वक्त वजूद में आ गया था। इनहराफ इसलिए कि मैं जमहूरियत की पाली हुई थी और मुझे यही कहना था कि मार्शल लॉ जिंदाबाद। वैसे तो हमने पाकिस्तान में मार्शल लॉ रेसेस ही देखी हैं, हम सब मार्शल लॉ रेस के पले में हैं। हमने पाकिस्तान में जमहूरियत बहुत कम देखी है,
और जो भी जमहूरियत रही है गाय के ज़माने की, उस पर मैं स्वाद नहीं करती, क्योंकि वो पहला ज़माना था जब सारी हुकूमतों के दरवाजे और सारी डिपार्टमेंट्स के दरवाजे औरतों के लिए खोले गए थे। पहली दफ़ा पाकिस्तान में औरतें सफ़ीर मुकर्रर हुई थी और पहली दफ़ा औरतें सेक्रेटरीज मुकर्रर हुई थी। और मज़े की बात यह है कि जैसे ही ज़िया-उल-हक का ज़माना आया, उन औरतों को पिछले दरवाजे में भेज दिया गया और बाकी औरतें जो थीं उनको 3 गज़ के दुपट्टे में लपेट दिया। और ये नहीं महसूस किया गया कि ये 3 गज़ का कपड़ा जो है ये तो उस गरीब औरत के लिए पूरा सूट है जिसके पास कपड़ा नहीं है पहनने को। अब वो अमीर औरतें जो अपने सूट के ऊपर 3 गज़ का दुपट्टा लपेट के आती थी, उनको मुझे एमएलए मानना पड़ा, उनको मुझे हुकूमत बनाने वाला मानना पड़ा। और फिर मुझे गुलामी भी नहीं भूलते जब मेरे मुल्क में 7 साल जैकब से लेकर बड़ी उम्र के मसूद जैसे लोगों को अनाउंसमेंट के 10 मिनट के अंदर कोड़े खाने पड़े। और जब मेरे शौहर यूसुफ कामरान को 70 वॉर की मेरी किताब के जो मैंने 70 वॉर के सेकंड सेट का तर्जुमा किया था, उसकी वजह से उसको गिरफ्तार किया गया और फिर अगली दफ़ा मुझे गिरफ्तार किया गया। और जब दुनिया की पूरी डिक्शनरियाँ और इंसाइक्लोपीडिया उठा के कोर्ट में हम गए और हमने दिखाया कि ये वो खातून है और ये वो किताब है जिसे सोशियोलॉजी में बड़ा नाम दिया गया है और इसे पोर्नोग्राफी नहीं कहते, तब जाके हमारी ज़मानतें मंजूर हुई। आपको मैं ये सिर्फ इसलिए बता रही हूँ कि शेर गोई या बात करना या नज़्म लिखना या माहौल देखना, ये सब जब तक हम अपने अंदर नहीं उतारते, जब तक उन सारे जख्मों को अपने आप शुमार करना नहीं करते शुरू करते, उस वक्त तक नज़्म अपना पैरहन नहीं खोलती है, शेर अपने आप को बरहना नहीं करता। लफ्ज़ मेरे सामने आके गूंगे हो जाते हैं अगर मुझे शेर में लुत्फ ना आता। सफ़े मेरे सामने आके सफ़ेद सफ़े आके मुझे चैलेंज करते हैं, मेरे ऊपर कुछ लिखो। मैं तुम्हारे लिए इसलिए नहीं पैदा किया गया कि तुम मोहब्बत की नज़में लिखो, तुम वो नज़में लिखो जिन्होंने मोहब्बत को बर्बाद किया, जिसने मोहब्बत को मुल्क में बर्बाद किया, शेरी अंदाज में बर्बाद किया, ऐसे बर्बाद किया कि 80 साल का बूढ़ा भी इश्क की शायरी करते हुए मुँह रस्ता वाले के मेरे सामने जब आता है तो मुझे अपनी आँखों पे एतमाद उठ जाता है, क्योंकि उस 80 सालों में उसने जितने भी इश्क किए उन इश्कों का ना कोई मिसाली लम्हा तहरीर है और ना कोई हिजरी लम्हा तहरीर है। अगर तहरीर है तो वो लफाजी जो मुझे और आपको पसंद नहीं है। मुझे अल्लाह का शुक्र है कि लफाजी करनी नहीं आती। मैंने बचपन से 20 साल की उम्र से शेर कहने शुरू किए थे और जो अरशद ने शेर सुनाया, कुछ उसका आखिरी मक्ता था जिसने बहुत यूनिवर्सिटी में शोर मचाया, और वो था कि कुछ यूँ भी जड़ जड़ सी नाहिद आश थी, कुछ ओढ़नी का रंग भी खिलता हुआ न था। मतलब ये कि इस पे मुझसे फैज साहब ने कहा, ये तो खातून की तरह क्यों शेर कहती है? तो मैंने कहा ऐसा मैं खातून हूँ। आपने औरत को फिर क्या पहचाना? उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया और वो बहुत से मेरे दोस्तों के लिए सुनने वाला है। उन्होंने कहा मैंने तो हमेशा औरत को लम्स से पहचाना, मेरे पास उसके साथ ताल्लुक़ का वास्ता कोई गलत नहीं होता, बस लम्स मेरे लिए औरत का लफ्ज़ जो है वो मुझसे शेर कहने वाला है। पर मुझे
मर्द का लफ्ज़ शेर मुझसे नहीं कहलवाता, क्योंकि मर्द के लफ्ज़ के बाद कि वो लम्हे जब आपको ज़बरदस्ती वो काम करना पड़ जाए जिसके लिए आप रवादार ना हो, तो वो वसी का लम्हा नहीं होता। और वो मुसीबत का लम्हा वो होता है जब आप सब्र करना सीखते हैं। और औरत ने सब्र करना किस ज़माने से सीखा, क्या बताऊं, चाहे हज़रत ईसा का ज़माना ले लें और चाहे हज़रत खदीजा का ज़माना ले लें, कोई ज़माना ले लें, उसने अपने आप को बर्दाश्त के लिए तैयार किया। मैं अपने ज़माने के मर्दों से और सियासतदानों से कहती हूँ कि उन्होंने बर्दाश्त करना नहीं सीखा। बर्दाश्त करने के बाद आपको ये हौसला होता है कि आप जेन्युइन बात कर सकें, आप लफ्ज़ों को जलेबियाँ ना बनाएं, आप लफ्ज़ों के साथ सिर्फ खेलें नहीं, आप लफ्ज़ों में वो मानी डालें जो कल की जनरेशन आपसे तलब करती है। मैंने हमेशा कोशिश की, अभी तक इसमें कामयाब नहीं हुई कि शेर को मैं पैरहन दे सकूं जो मेरे अंदर बैठा हुआ है, लेकिन कभी कभी वो रूठ इसलिए जाता है कि जब मेरे पास वो औरतें आती हैं जिनसे ज़बरदस्ती से दूसरी शादी का अंगूठा करवा लिया जाता है, या वो औरतें आती हैं जिनके ऊपर तेज़ाब इसलिए फेंक दिया गया है कि वो उस लड़के से शादी करने के लिए रजामंद नहीं थी, या वो लड़कियां आती हैं, लाई जाती हैं बल्कि जिनकी उम्र 7 से 9 साल हो और उनकी 80 साल के बूढ़े के साथ शादी की जा रही है। मेरे सामने ये सारे मंजर जब खुलते जाते हैं तो मेरा कलम लिखते हुए लरजने भी लगता है, और मेरे हाथ का राशा नहीं है, मेरे दिल का राशा है कि मेरे अंदर इतनी तकलीफ होती है कि मैं बहुत दफ़ा रोते हुए नज़्म लिखी है, लेकिन बहुत दफ़ा ये हुआ कि नज़्म लिखने के बाद मैंने लंबी सांस लेके खुदा का शुक्र अदा किया कि मेरे अंदर से वो कम से कम कुछ तो निकला दुख जो मैंने कागज़ में मुंतकिल कर दिया है, और जो मेरे अंदर इस वक्त नहीं है, कल को फिर आएगा नया दुख, मैं कल को फिर नई नज़्म लिखूंगी और यूँ ज़िंदगी आगे बढ़ती रहेगी। उस बच्ची ने बहुत अच्छी नज़्म पढ़ते हुए कहा है, बालों की चांदी का जिक्र किया है। मैंने आज से 50, 30, 40 बरस पहले एक पहली नज़्म लिखी थी जो था, इसका नाम था पहला सफ़ेद क्लासिकियत की रंगो आएगी। और अगर नज़्म लिखनी है तो टी.एस. एलियट को पढ़ो, डेनिस थॉमस को पढ़ो, इन सारे शायरों को पढ़ने के साथ तुम्हें पता चलेगा कि नज़्म आपको किस किनारे से चल शुरू करती है और किस दूर तक कहाँ ले जाती है। नज़्म और गज़ल दोनों में एक यकसानियत नहीं होती। वो ज़माना और था जब अख्तर शीरानी की गज़ल नज़्म पढ़ के हर लड़की अपने आप को रेहाना कहने के लिए तैयार होती थी और हर लड़की सलमा कह देती थी। बल्कि बात करते करते एक हल्की सी बात कि मेरा दफ्तर बेगम सलमा तसद्दुक़ हुसैन के दफ्तर घर के सामने था, तो एक दिन मैंने सलमा आपा से कहा, क्यों सलमा आपा, अख्तर शीरानी आप पे इतनी नज़में क्यों लिखता रहा? मुझे पता था मैं झूठ बोल रही हूँ। वो हंस के कहती हैं, ईश्वर रहने दे। मतलब ये कि हर औरत उस ज़माने की अपने आप को रेहाना और सलमा समझने लगी थी, लेकिन आज की औरत जो है, आज की लड़की जो है, वो अपने आप को लैला खालिद समझ सकती है या हमारी मलाला समझ सकती है। आज की औरत के सामने कोई फिल्मी हीरोइन नहीं होती ना। इसीलिए मैं अपने रोमांटिक शायरों से कहती हूँ और बार बार कहती हूँ कि आज की लड़की के चेहरे के ऊपर तुम वो गुलाबी तलाश ना करो जो उसके होठों तक आ चुकी है और लफ्ज़ों में तुम्हारे साथ तैरना चाहती है। तुम उस रंग को तलाश करो जो उसकी आंखों में यकीन के साथ, एतमाद के साथ तुमसे आंख मिलाकर बात कर सकती है। मुझे तवक्को है कि मेरे दोस्त सब इस बातों को अपने पहलू में लेके दिए की तरह साथ लेकर जाएंगे। और एक दफ़ा मैंने लिखा था
कि दियों को छोड़कर लौ मेरे साथ साथ चलने लगे, दिए को छोड़कर लौ मेरे साथ साथ चलने लगे। तो ये चीज़ें होती हैं जो साथ साथ चलती हैं। मैं यहाँ पे नईम भी बैठे हैं और सियासत का मैंने खुद मना किया, तो इसलिए मैं सियासत की नज़म नहीं सुनाऊंगी, शायद सुना दूं। ये कुछ हमारे लिए, कुछ हमारे लिए। मुश्ताक लाशारी तो हमसे छुप के बैठे हुए यहाँ, हम 40 साल से वहाँ तलाश कर रहे हैं, नहीं तो चले गए, ये यहाँ बैठे हुए हैं। ख्वाहिश इस नज़्म का उन्वान है। मैं मंटो की तरह अपना कतबा खुद तजवीज़ करना चाहती हूँ। उसने कहा था वो इस ज़मीन का सबसे बड़ा अफसाना निगार है। सच है, वो था भी। वो बिला झिझक औरत पे होने वाली ज्यादतियों को अफसाने का रूप उस ज़माने में देता था जबकि सारी दुनिया की औरतें अपने हुकूक के लिए जागी नहीं थी। पाकिस्तान ने उस पर दुश्मनाम के इतने छींटे फेंके कि वो नाराज़ होकर अपना अफसाना 10-10 रुपए में फरोख्त करने लगा। दुश्मनाम के छींटों ने मेरा लिबास भी बेलिबासी में बदल दिया है, मगर मैं खुद को अपने अहद की सबसे बड़ी शायरा नहीं कह सकती हूँ। मैं अपना कतबा मौत से पहले इसलिए लिखना चाहती हूँ कि दूसरे मुल्कों में मसरूफ़ मेरे बेटों को शायद फुर्सत ही ना मिले या फिर ध्यान ही ना आए। मुझे अपने आप को दायम करने का ख्याल क्यों आ रहा है? क्या कतबा दायमियत की निशानी होता है? लंदन में मार्क्स का कतबा देखकर उसे और उसके ज़माने को फरामोश नहीं किया जा सकता है। कुछ लोग अजीम शायर थे मगर उनको कतबा ही मैसर नहीं आया। ज़हूर नज़र एक बड़ा शायर बहावलपुर की ज़मीन में जैसा अकेला था वैसे ही अकेला पड़ा है। खुशवंत सिंह ने अपनी राख पाकिस्तान के दरिया में डालने की वसीयत की थी। मेरा दिल भी यूं ही राख होना चाहता है, पर मेरा मजहब इजाज़त नहीं देता है कि मैं खाक हो जाऊं। यूं तो दफन होने के बाद भी खाक ही बनना होता है। कतबा आपको नहीं, आपके ज़माने को जिंदा रखता है। एक नज़्म और उसके बाद कुछ और बातें करेंगे। गज़लें सुनाऊंगी क्योंकि बहुत से लोगों को मुझसे ये मिला कि गज़ल कहाँ भूल जाती हूँ। तेरी मेरी कहानी। बेनाम ग्लेशियर जब पिघलना शुरू करें तो कितनी ज़िंदगी पाते हैं। चंद दिन, चंद हफ्ते, चंद माह या चंद साल, बिल्कुल इंसान की तरह। इंसान के जिस्म का पानी कभी आंसू बनकर और कभी मोहब्बत का पसीना बनकर निकलता है, मगर जो लोग सारी उम्र एयर कंडीशन कमरों और गाड़ियों में ज़िंदगी गुजारते हैं उनके अंदर का पानी बड़ी हुई तोड़ बन जाता है। फिर वो आवाम को भूख और प्यास मिटाने के ख्वाब दिखाते हैं। आवाम उनकी लहकती फसल को तोड़ वालों के गुंडे रातों रात जला देते हैं। आवाम फिर उनके वादे सुनने के लिए जमा होकर तालियां बजाते हैं, ख्वाब देखते हैं। ख्वाब देखते देखते पसीना पोंछते पोंछते खाक हो जाते हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे बेनाम ग्लेशियर। अब गज़लों से शुरू करती हूँ। हमने गम खींचा था, हमने गम खींचा था, ईजा तलबी कम न हुई। हमने गम खींचा था, ईजा तलबी कम न हुई। दिल में तूफान आ रुका, दरबदरी कम न हुई। हमने गम खींचा था, ईजा तलबी कम न हुई। दिल में तूफान आ रुका, दरबदरी कम न हुई। हमने रुसवाई भी पहनी, तुझे रुसवा न किया। हमने रुसवाई भी पहनी, तुझे रुसवा न किया। ए मेरी शहर
तेरी बेखबरी कम ना, हमने रसवाई भी पहनी तुझे रसवा ना किया, ऐ मेरे शहर तेरी बेखबरी कम ना हुई। दिल की दहलीज मिटी दर ना रहा, घर ना रहा, दिल की दहलीज मिटी दर ना रहा, घर ना रहा, फितना सामानों की पर फितना गरीब कम ना हुआ। दिल की दहलीज मिटी दर न रहा, घर न रहा, फितना सामानों की पर फितना गरीब कम ना हुई। किस्सा खानी कहीं की और कहीं ढूंढा उसको, किस्सा खानी कहीं की और कहीं ढूंढा उसको, जल बुझे दाग आंखों में नमी कम ना हुई। किस्सा खानी कहीं की और कहीं ढूंढा उसको, जल बुझे दाग आंखों में नमी कम ना हुई। और हम तो तूफान बदल रुकते रहे चलते रहे, हम तो तूफान बदल रुकते रहे चलते रहे, प्यास बुझती रही पर तृष्णा लगी कम। हम तो तूफान बदल रुकते रहे चलते रहे, प्यास बुझती रही पर तृष्णा लगी कम ना हुई। और आखिरी शेर है, फासले कम ना हुए, शौक सफर कम ना हुआ। फासले कम ना हुए, शौक सफर कम ना हुआ, उससे मिलते रहे बेगाना रवि कम ना हुआ। फासले कम ना हुए, शौक सफर कम ना हुआ, उससे मिलते रहे बेगाना रवि कम ना हुई। हमने गम खींचा था ईजा तलबी कम ना हुई, दिल में तूफान अब टुका दर बदरी कम। एक और गजल, ये ताज़ा गजलों में से है, इसमें से इसलिए और इसलिए भी बता रही हूँ कि नज़्म और चीज़ें और गजल और चीज़ें वो मैं बाद में बताऊँगी। इल्तज़ामन कोई ख्वाहिश नहीं की जा सकती, इल्तज़ामन कोई ख्वाहिश नहीं की जा सकती, खानकाहों में तो पुरसिश नहीं की जा सकती। इल्तज़ामन कोई ख्वाहिश नहीं की जा सकती, खानकाहों में तो पुरसिश नहीं की जा सकती। अब इजाज़त ही कहाँ हमको सुखन करने की, अब इजाज़त ही कहाँ हमको सुखन करने की, बोलने के लिए कोशिश नहीं की जा सकती, बोलने के लिए कोशिश नहीं की जा सकती। तूने दरियाओं को सहराओं में बदला है बहुत, तूने दरियाओं को सहराओं में बदला है बहुत, आसमां तुझसे सिफारिश नहीं की जा सकती। तूने दरियाओं को सहराओं में बदला है बहुत, आसमां तुझसे सिफारिश नहीं की जा सकती। या खुदा ख्वाब बना दे मुझे हल्का कर दे, या खुदा ख्वाब बना दे मुझे हल्का कर दे, ये न कहना कि ये बंदिश नहीं की जा सकती। या खुदा ख्वाब बना दे मुझे हल्का कर दे, ये न कहना कि ये बंदिश नहीं की जा सकती। मांगता क्या है फलक चश्मे फरामोशी से, दूसरा देखिए, मांगता क्या है फलक चश्मे फरामोशी से, जख्म इतने हैं कि जुम्बिश नहीं। मांगता क्या है फलक चश्मे फरामोशी से, जख्म इतने हैं कि जुम्बिश नहीं की जा सकती। और आखिरी शेर है, ढूंढते क्या हो गुलिस्तान में रहा कुछ भी नहीं, ढूंढते क्या हो गुलिस्तान में रहा कुछ भी नहीं, इस खराबे में तो शोरिश नहीं की जा सकती। जी कहाँ जुम्बिश कहाँ था? हाँ, मांगता क्या है फलक चश्मे फरामोशी से, ज़ख्म इतने हैं कि जुम्बिश नहीं की जा सकती। इल्तज़ामन कोई ख्वाहिश नहीं की जा सकती, खानकाहों में तो पुरसिश नहीं की जा सकती। ये बातें पढ़ूँ आने दो। असल में जिस सफ़ों पे इसलिए लिखे हुए कि कभी दफ्तर में
कभी घर पे हंडिया पकाते हुए, कभी बुरे बुरे टेलीफोन सुनते हुए, कभी अच्छे अच्छे ख्वाब देखते हुए, कभी एक मिसरा होता है, कभी दूसरा होता है, और जब फुर्सत मिलती है तो उन मिसरों को इकट्ठा किया जाता है। एक दिन का मुझे याद है कि और असल में मुझे भूल जाती हैं चीज़ें, मैं फ़ौरन लिख लूँ तो याद रहती है। मैं रास्ते में लाहौर में फिरोजपुर रोड पे जा रही थी तो मिसरा आने लगा, तो गाड़ी मैंने रोकी साइड को, तो उधर से वो डायरेक्टर ट्रांसपोर्ट जो थे पुलिस के, उन्होंने कहा कि ये पता नहीं गाड़ी ख़राब हो गई है, तो ये रुक गई है, तो आया चल के, तो कहने लगा क्या हुआ, फिर मैंने कहा कुछ नहीं, 2 शेर दिख रही हो। एक मुख्तसर बहर की गज़ल। तुझसे वादा अजीज तर रखा, तुझसे वादा अजीज तर रखा, तुझसे वादा अजीज तर रखा, वहशतों को भी अपने घर रखा। तुझसे वादा अजीज तर रखा, वहशतों को भी अपने घर रखा, और अपनी बेचैरगी छुपाने को, अपनी बेचैरगी छुपाने को आईने को इधर उधर। इस शेर ने मुझसे पूरी गजल कहलवाई। मैं एक दिन सुबह 4 बजे के करीब उठी, सर्दियाँ शदीद थी, और मेरे मुंह पे ये शेर था, अपनी बेचैरगी छुपाने को आईने को इधर उधर रखा। तो मैंने कहा कि ये तो शेर हो गया। तो मैं वॉशरूम से वापस आई तो फिर ये पूरी गजल मैंने लिखी, उसकी देखी। अपनी बेचैरगी छुपाने को आईने को इधर उधर रखा, एक तेरा गम ही अपनी दौलत थी, एक तेरा गम ही अपनी दौलत थी, दिल में पोशीदा बेखतर रखा। आरज़ू ने कमाल पहचाना, आरज़ू ने कमाल पहचाना, आरज़ू ने कमाल पहचाना, हर ताल्लुक को ताक पर रखा। आरज़ू ने कमाल पहचाना, हर ताल्लुक को ताक पर रखा। और ये शेर सुनिए कि इस कदर था उदास मौसम गुल, इस कदर था उदास मौसम गुल, हमने आबे रवां पे सर रखा। इस कदर था उदास मौसम गुल, हमने आबे रवां पे सर रखा। अपनी वारफ्तगी छुपाने को, अपनी वारफ्तगी छुपाने को शौक ने हमको दरबदर रखा। अपनी वारफ्तगी छुपाने को शौक ने हमको दरबदर रखा। कलमा शुक्र के मोहब्बत ने, कलमा शुक्र के मोहब्बत ने हमको तमहीद ख्वाब पर रखा। कलमा शुक्र की मोहब्बत ने हमको तमहीद ख्वाब पर रखा। और आखिरी शेर है कि उनको समझाने अपना हरफ सुखन, उनको समझाने अपना हरफ सुखन आंसुओं को पयाम्बर रखा। अपनी बेचैनगी छुपाने को आईने को इधर बस इजाजत। सवाल जवाब क्या? हो गए सवाल, हो गए एक नज़्म बहुत से सवालों का जवाब, वो ये कि पिछले दिनों पाकिस्तान गवर्नमेंट के पयाम्बर बादशाह जो थे वो सऊदी अरब जा रहे थे। सऊदी अरब के बंदे हमारी तरफ आ रहे थे। इवन इमाम काबा तक ये कहने के लिए आए कि आप फौज क्यों नहीं भेजते। तो ये होता रहा और ये होता रहा और ये होता रहा और ये होता रहा, और एकदम कुछ खामोशी से छा गई। मेरा दिल बड़ा कर्ब में मुब्तला था कि हम इस तरह के काम हो गए कि रोज़ हम जाके कह रहे अच्छा भेज देंगे, अच्छा प्लीज़ दोस्तों माफ़ कर दो। तो मैंने नज़्म लिखी, उन्वान भी रखा उसका टेंडर नोटिस। उन्होंने कहा हमें कुछ ऐसे गुलाम चाहिए जिन्हें बेदर्दी से गोली चलाने की महारत। उन्होंने कहा हमें कुछ ऐसे गुलाम चाहिए जिन्हें बेदर्दी से गोली चलाने की महारत हो, जिनके अंदर इंसानियत नाम की कोई बुबास न हो, जिन्हें सिर्फ और सिर्फ हुक्म मानना आता। हमें कुछ ऐसे गुलाम चाहिए जिन्हें मालो दौलत की शहवत हो,
کہ ہم ان کی جیبوں کو کبھی خالی نہیں ہونے دیں گے، کہ ہم اگر ان کی کھال بھی اتار لیں تو وہ اسے نعمت عرب سمجھیں گے، کہ ہم اگر ان کی کھال بھی اتار لیں تو وہ اسے نعمت عرب سمجھیں گے۔ ہم ہر روز شام کو ان کے سامنے معرفت کے جام و مینا رکھیں گے، ان کے ہاتھ میں دیدار حرم کے وعدے کی تسبیح پکڑا دیں گے، ان کے سارے گناہ معاف کروا دیں گے، کہ انہیں معلوم ہوگا کہ وہ غلام ہیں اور اسلاف و ایمان کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ ہمیں ایسے غلام چاہیے جو دن رات کی تمیز کے بغیر ہر لمحے مبارزت پہ آمادہ ہوں، کسی بھی حکم کے بارے میں نہ سوچتے ہوں اور نہ سوچ سکتے ہوں۔ ہمیں کچھ ایسے غلام چاہیے جو غلامی پہ شاکر رہنے کو ہی آزادی سمجھتے ہیں۔ ہمیں کچھ ایسے غلام چاہیے جو غلامی پہ شاکر رہنے کو ہی آزادی سمجھتے ہوں، جو ہمارے حکم پہ آمنا صدقنا کہتے رہیں، جو ہمارے غنیم کو مارنا اے عبادت سمجھیں، جو بھول کر بھی اپنے پیچھے رہ جانے والوں کو یاد نہ کریں۔ بس ایک لمحے کے توقف کے بغیر ہمارے ملک میں ایسے غلام بھیج دو۔ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم تمہاری سروری کی حفاظت کریں گے، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم تمہاری سروری کی حفاظت کریں گے، اور یقین کرو ہم تمہیں تیل بھی بھیجتے رہیں گے۔ تشریف رکھیے، میں مجھے سنانے دیجیے، پھر آپ سنائیے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ آنکھیں ہوں تماشا ہی نہ ہو، یہ بھی ممکن ہے کہ آنکھیں ہوں تماشا ہی نہ ہو، راس آنے لگے ہم کو تو یہ دنیا ہی نہ ہو، راس آنے لگے ہم کو تو یہ دنیا ہی نہ ہو۔ یہ بھی ممکن ہے کہ آنکھیں ہوں تماشا ہی نہ ہو، راس آنے لگے ہم کو تو یہ دنیا ہی نہ ہو، زندگی چاہیں تو خوابوں کے سوا کچھ نہ ملے، زندگی چاہیں تو خوابوں کے سوا کچھ نہ ملے، ڈوبنا چاہیں تو حاصل ہمیں دریا ہی نہ ہو، اور دل کو خوش کرنے کو ڈھونڈے ہیں بہانے ہم نے۔ اسے کو غور سے سنے تو دوسرا سمجھ میں آئے گا۔ دل کو خوش کرنے کو ڈھونڈے ہیں بہانے ہم نے، اب پلٹ کر ذرا دیکھیں کہیں آیا ہی نہ ہو، ڈھونڈے ہیں بہانے ہم نے، اب پلٹ کر ذرا دیکھیں کہیں آیا ہی نہ ہو، اب تو بس ساعت گم کردہ کی یادیں باقی، یہ وہ جنگل ہے کہ جس میں کوئی رستہ ہی نہ، اور کام کیا دے گا وہ ٹوٹا ہوا آئینہ بھی، وہ ٹوٹا ہوا آئینہ بھی، یاد رکھنے کو وہی عکس وہ چہرہ ہی نہ ہو، کام کیا دے گا وہ ٹوٹا ہوا آئینہ بھی، یاد رکھنے کو وہی عکس وہ چہرہ ہی نہ ہو، اور آخری شعر کے ہجر کو شوق مداواہی سمجھ کر جی لے، ہجر کو شوق مداواہی سمجھ کر جی لے، زندگی تجھ سے الجھنے کا تو یارہ ہی نہیں۔ اور وہ تو آپ لوگوں نے سب نے کو یاد بھی ہوگی، جو ملالہ کے حوالے سے میری نظم ہے، وہ جو بچیوں سے بھی ڈر گئے، وہ جو بچیوں سے بھی ڈر گئے، وہ جو علم سے بھی گریز پا، کرے ذکر رب کریم کا، وہ جو حکم دیتا ہے علم کا، کرے اس کے حکم سے ماورا یہ منادیاں، نہ کتاب ہو کسی ہاتھ میں، نہ ہی انگلیوں میں قلم رہے، کوئی نام لکھنے کی جانا ہو، نہ اس میں زنا ہو، وہ جو بچیوں سے بھی ڈر گئے، کرے شہر شہر منادیاں، کہ ہر ایک قد حیانما کو نقاب دو، کہ ہر ایک قد حیانما کو نقاب دو، ہر ایک دل کے سوال کو یہ جواب دو، نہیں چاہیے کہ یہ بچیاں اڑے طائروں کی طرح بلند، نہیں چاہیے کہ یہ بچیاں کہیں مدرسوں کہیں دفتروں کا بھی رخ کریں، کوئی شعلہ رو کوئی باصفہ ہے، کوئی تو زین حرم ہی اس کا مقام ہے، یہی حکم کلام ہے۔
और आखिरी बात है, वो जो बच्चियों से भी डर गए वो यहीं कहीं है करीब में। जो बच्चियों से भी डर गए वो यहीं कहीं है करीब में। इन्हें देख लो, इन्हें जान लो, नहीं इनसे कुछ भी बईद शहर जवाल में। रखो हौसला, रखो ये यकीन कि जो बच्चियों से भी डर गए वो है कितने छोटे वजूद में। बच्चियों से भी डर गए वो है कितने छोटे वजूद में। चार शेर जो एक दूसरे से मजबूत है इसलिए वो चार शेर सुना रही हूँ। मेरी आंखों में दरिया झूलता है, मेरी आंखों में दरिया झूलता है, ये पानी अब किनारा ढूंढता है। मेरी आंखों में दरिया झूलता है, ये पानी अब किनारा ढूंढता है। ये पानी, अब देखें ना ये चीजें कैसे रिपीट होंगी। ये पानी रेत की तह से गुजर कर, ये पानी रेत की तह से गुजर कर ताल्लुक है तो रास्ता ढूंढता है। ये पानी रेत की तह से गुजर कर ताल्लुक है तो रास्ता ढूंढता है। ताल्लुक को न समझो जावेदानी, ताल्लुक को न समझो जावेदानी, ये आईना हवा से टूटता है। ताल्लुक को न समझो जावेदानी, ये आईना हवा से टूटता है। हमारी प्यास रुखसत चाहती है, हमारी प्यास रुखसत चाहती है। प्याला हाथ से अब छूटता है। अमानुल्लाह खान, ये जो किताब आपको, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नज़म भी आपके शान में पढ़ी जा चुकी है किसी और पहचान तो लिए ना। जी बिल्कुल, अमानुल्लाह तो लिख रहे हैं। हाँ बिल्कुल, हम और आप अहमद फराज जी बिल्कुल उनको लिख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अमानुल्लाह खान साहब, आप तशरीफ तो ले आए। मैंने 12 पोएम जो है वो फेसबुक पे छोड़ दी अंग्रेजी में और उर्दू में भी लिखी है इनकी शान। बहुत शुक्रिया, बहुत जबरदस्त है। अगर सिर्फ दो आप अगर आप पहले तशरीफ ले आते तो आप पढ़ भी लेते। मैंने बड़ी कोशिश की। हाँ, लेकिन अब सेशन खत्म हो, महफिल के आदाब हुआ करते हैं। नहीं महफिल के आप आदाब मुझे ना सिखाइए, वो मैं जानता हूँ। फिर तो आप बेहतर जानते के सामने मैं आदाब ना जानूं, ठीक है। इन्हीं के लिए आया हूँ मैं। अच्छा, बहुत शुक्रिया। मैं शुक्रगुजार हूँ फर्दन हर शख्स का कि यहाँ मेरे कहने पे इतनी जहमत उठा के आप लोग तशरीफ लाए। और अब मैं लाशारी साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो आके आपका शुक्रिया अदा करें, क्योंकि मेरे मुआविन मेज़बान हैं। देखिए जी, किशोर नाहिद साहबा 40 साल से आप ढूंढ रही हैं, लेकिन मैं आपके हमेशा कदमों में रहा हूँ। यहाँ पे भी वही जद्दोजहद कर रहा हूँ। चाहिए कदमों ही में तो नहीं चाहिए, साथ साथ चाहिए। और किशोर नाहिद साहबा, आपने और जो आप जैसे लोगों ने हमें झंडा पकड़ाया था, आज तक वही झंडा यहाँ भी उठाए हूँ। रेड टाई कभी नहीं छोड़ी, हैट पहन लिया है। तो मैं एक छोटी सी बात यहाँ पे अर्ज करना चाहता हूँ कि किशोर नाहिद और इनके कबील के जो लोग पाकिस्तान में हैं, इनसे हमारे हुक्मरान, हमारे सियासी लीडर अगर मुस्तफीज हूँ थोड़ा सा, तो मैंने पिछले दिनों कोशिश की थी, कुछ अपने दोस्तों को कहा कि आप शाम को महफिल किया करें, जैसे जिसमें ऐसे पढ़े लिखे लोगों को जरूर बुलाया करें। महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में एक दफा कुछ लोगों को जो सच्ची बात कहते हैं, जो ओपन बात करते हैं, जो कभी रख रखाव नहीं रखते। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो लोग पाकिस्तान में हैं और सुन रहे हैं और शायद सुने, उनसे कि वो ऐसे लोगों को कदर की निगाह से देखें, जो आवाम की तर्जमानी करते हैं, जो धरती की तर्जमानी करते हैं, जो माँ की, इन्होंने एक लफ्ज यूज किया अपनी पहली नज़म में, बर्दाश्त का। मैं एक छोटी सी बात के साथ बात खत्म करूंगा कि मैं माँ के साया से
दूर रहा। 5 साल की उम्र में फौत हो गई, टीबी थी उनको। और मैंने वो बर्दाश्त का मादा अपनी बेगम से सीखा है, जब वो अपने बच्चों के सामने। अब मैं वही बर्दाश्त का मादा अपनी बेटी से सीख रहा हूँ। मेरी फातिमा बेटी भी यहाँ बैठी है, जो भी माँ है। अभी वो मेरी बेटी बेनज़ीर 2 बच्चों की माँ बनी है, तो वो मैं उसको जब देखता हूँ कि ये कितनी बर्दाश्त है, तो मैं तड़पता हूँ कि मैंने अपनी बेगम का इतना साथ नहीं दिया जितना देना चाहिए था जब उसके छोटे छोटे बच्चे थे। तो आज ये एक मैसेज है आपकी मौजूदगी में, और मैं लंदन से दे रहा हूँ कि हमें बर्दाश्त जिसकी इन्होंने बात की वो माँ से सीखना चाहिए, और यहाँ बहुत सारी माएँ बैठी हैं, वो बहनों से सीखना चाहिए जो हमारे बहुत सारी करीब हैं, वो हमें अपनी बेटियों से सीखना चाहिए जो हमारे बहुत करीब हैं। आई एम वेरी थैंकफुल टू 3 of my members who doesn't speak a word of Urdu, but they are here because we are going to have a small meeting afterwards. Kelmas Kefale Alam from Ethiopia and Matthew Buxton from London, and Agar from Pakistan. And if anybody, this will be on YouTube either tonight or tomorrow. If you Google Matthew Buxton or Third World Solidarity, you can see all the program and send it link to all your friends if you want to. But we do organize meetings like this, and I'm very pleased कि हम यहाँ पे आज मौजूद हैं। मैं खुद पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, मैं कभी शायद पढ़ जाता कुछ यूनिवर्सिटी तक, कॉलेज तक, तो शायद अदीब और शायर हो जाता, लेकिन चूंकि मैं बहुत बचपन से घर से निकल आया, नहीं बन सका। लेकिन मैंने अपने पॉलिटिकल एक्टिविज्म के साथ हमेशा जोड़ा है जो प्रोग्रेसिव शायरी है, जो अच्छी शायरी है, और शायर जब लिखता है तो हम उस पर अमल करते हैं। पॉलिटिकल एक्टिविस्ट नहीं बैठे, और मैं हूँ, बहुत सारे आजम साहब भी बैठे हैं। और जब हम एक्ट करते हैं तो आपको लिखने का मौका